Hello student and welcome your economics channel. In the last video we already studied about how to create a full form of 8 related aggregates and the basics of national income. And today I am going to teach you how to estimate the national income. There are three basic methods to estimate national income. These are value added method, means product method, income method and expenditure method. Actually there are three phases of the economy: consumption, production and distribution. It means consumption, total consumption consumed by the economy. If total consumption consumed by the economy, it is always be equal to total production produced by the producers. माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के थ्री फेसेस में जब हम लोग कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो सर्कल हमेशा चलता है और जितने का कंजप्शन उतने का प्रोडक्शन और उतने का इनकम ये जनरेट होता रहता है अगर उस इकोनॉमी में किसी तरह का लीकेज ना हो. हमने पढ़ा है लीकेज एंड इंजेक्शन. तो सो माय डियर स्टूडेंट, देयर आर थ्री मेथड टू स्टार्ट estimation of national income. For the consumption, our expenditure method; for the distribution, our income method; and for the production, our value added method or product method. Now today start with the value added method. Under value added method करना क्या है हमें? फर्स्ट हमें निकालना है GVAMP. GVAMP, gross value added at market price. It is equal to gross domestic product at market price. Value added method में हम इसे कहते हैं gross domestic product at market price के प्लेस में gross value added at market price. So my dear student, अगर क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालना है मींस NNPFC, अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम निकालना है मींस NDPFC, अगर क्वेश्चन में कुछ और निकालना है फिर भी हमें फर्स्ट निकालना क्या है? GVAMP. हमें फर्स्ट निकालना क्या है? GVAMP. हाउ टू फाइंड आउट GVAMP? एक्चुअली GVAMP इज इक्वल टू GVOMP minus IC. GVOMP means gross value of output minus intermediate consumption. हम लोगों ने बात किया था वैल्यू एडेड, किसने कितना वैल्यू ऐड किया. सो माय डियर स्टूडेंट, वैल्यू एडेड, suppose that the total value of goods and services is 5 crore rupees and for the production of those goods we already used 3 crore rupees as a raw material. That means these goods added their value only 2 crore rupees. It is added, included under national income. So that my dear student, GVOMP means gross value of output, the value of goods and services which produced during the financial year under domestic territory, and minus intermediate consumption. Intermediate consumption means all those things which use as a raw material for the production of these commodities or goods and services. So GVAMP अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? GVAMP नहीं दिया हुआ है और IC भी नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? IC नहीं दिया हुआ है इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब किसी भी तरह का कंजप्शन, रॉ मटेरियल का परचेजिंग या किसी भी तरह का खर्च, एनी टाइप ऑफ expenditure by the firm for the production, it is included under IC. और अगर GVOMP नहीं दिया हुआ है उस कंडीशन में क्या करेंगे? GVOMP नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 3 स्टेप कर सकते हैं. तो टोटल आउटपुट इनटू प्राइस मींस GVOMP. टोटल आउटपुट इनटू प्राइस means the production unit produces 100 unit of a commodity and the price of every unit is 10 rupees. That means the total value of output is 100 into 10 is equal to 1000. So my dear student, if GVOMP we
needed, that time we can utilize total output into price. अगर ये भी नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड क्यों क्वांटिटी इनटू प्राइस, सोल्ड क्वांटिटी इनटू प्राइस। सोल्ड क्वांटिटी मींस 100 यूनिट गुड्स प्रोडक्शन किया कंपनी ने, उसमें से 80 यूनिट्स उसने सेल कर दिया, तो सोल्ड क्वांटिटी इनटू प्राइस, वो अमाउंट दिया हुआ है, तो सोल्ड क्वांटिटी इनटू प्राइस, इससे हमारा सेल्स का अमाउंट निकलेगा। और उसमें हम लोग करेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक क्या है ये बताते हैं। चेंज इन स्टॉक, तो सोल्ड क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक मींस टोटल आउटपुट। सोल्ड क्वांटिटी मींस 80 यूनिट which already sold by the firm, into price means 10 rupees means 800, plus change in stock which is unsold goods, which is the value of unsold goods during the accounting year. This is known as change in stock. The change in stock, it is known as sales plus change in stock also. Okay, change in stock, what is change in stock? अगर ये नहीं दिया हुआ change in stock कैसे हुआ change in stock? कितना से हमने बिजनेस स्टार्ट किया और कितना में हमने बिजनेस फिनिश किया, इसके डिफरेंस को हम लोग चेंज इन स्टॉक बोल सकते हैं। मींस द चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इस इज नोन एज चेंज इन स्टॉक। इजीली फाइंड आउट the GVOMP minus IC. With the help of GVOMP we can find out easily NNPFC and any other related aggregates with the help of 3 things जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। और एक चीज, वैल्यू एडेड का मतलब होता है सारे सेक्टर से वैल्यू ऐड होना। मेरे कंट्री में 3 सेक्टर्स हैं मेनली, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर, और मेरे कंट्री में तीनों सेक्टर से कुछ कुछ अमाउंट की वैल्यू ऐड हुई है। तो इन दिस सिचुएशंस द GVOMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स प्लस GVOMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर्स प्लस GVOMP ऑफ टर्जरी सेक्टर, तीनों सेक्टर को ऐड करेंगे तो मेरा एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट होगा। इस कंडीशन में हम पूरे इकोनॉमी की ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इन मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर अलग अलग दिए हुए हैं, डिफरेंट दिए हुए हैं, तो हमें सबके अलग अलग से GVOMP निकालनी है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है, प्राइमरी सेक्टर्स की अलग, सेकेंडरी सेक्टर्स की अलग, टर्जरी सेक्टर्स की अलग, एंड उसको ऐड करना है। इस केस में क्या होगा, तो मेरे पास ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। कुछ कंडीशंस और मैं बताता हूं, जैसे सेल्स, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में सेल्स देता है, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, सेल्स टू फर्म सी बाय फर्म बी। इस कंडीशन में क्या करना है, ये ओवरऑल सेल्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी एक कंपनी किसी और कंपनी को बेचा, तो हमें किसी एक कंपनी का वैल्यू एडेड निकालना है, फिर दूसरे कंपनी का वैल्यू एडेड निकालना है, फिर ऐड करना है, तब मेरे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा। और अगर मैंने किसी कंपनी का सेल्स निकाला तो वो दूसरे कंपनी के लिए परचेज भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडेड। सेम टू सेम, ओवरऑल सेल्स मींस इंक्लूडेड डोमेस्टिक सेल्स एंड international sales. International sales means export. Overall sales means domestic sales and international sales. Sometimes the questions mention domestic sale and as well as sales and export. In that situations we can utilize the sales only. If sales are missing, that time utilize the domestic sale plus export. In same to same, the import and domestic purchase, the domestic purchase plus import is equal to intermediate consumptions. If intermediate consumption is missing, then both are added. Now my dear student, you can easily find out. Now start with the questions of value added and try to your level best. Okay, thank you.